خضدار کے ذہین طلبہ نے ایک انقلابی AI پروجیکٹ تیار کر لیا۔ MRI اسکین سے برین ٹیومر کی خودکار تشخیص کر سکتا ہے۔ خضدار سے عبداللہ شاہوانی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خضدار کی 2 طالبات اور 1 طالب علم پر مشتمل ٹیم نے ایک حیران کن پروجیکٹ تیار کیا ہے جو شعبہ صحت میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ VGG16 ڈیپ لرننگ ماڈل پر مبنی یہ ایجاد روایتی دستی تجزیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز تر، درست اور انسانی غلطی سے پاک ہے۔ یہ محض ایک مشین نہیں بلکہ دماغ کا حقیقی محافظ ہے جو پوشیدہ خطرے کو فوراً شناخت کر لیتی ہے۔ ہمارا جو بیسکلی پروجیکٹ ہے وہ برین ٹیومر MRI امیج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، خضدار میں اسپیشلی ایک ریڈیولوجسٹ اور برین ٹیومر ایک ایسا ڈیزیز ہے جسے ایک عام آنکھ کبھی نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اگر کوئی فریکچر یا کچھ بھی دیکھ لے ایکس رے تو اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے یا کیسے ہے، لیکن برین ٹیومر کبھی بھی آسانی سے ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اسی کے بیس پہ ہم نے ایک ایسا ماڈل ٹرین کیا ہے جہاں پہ اگر ہم اسے ایک امیج دے دیں گے وہ پورا ہمیں ڈیٹیکٹ کر کے بتائے گا۔ کہ کوئی 100 مریض ان کے پاس آتے ہیں تو پھر اگر وہ MRI بھی دیکھ رہے ہیں، CT اسکین بھی دیکھ رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کے سافٹ ویئر ان کو سپورٹ کرنے میں بہت زیادہ کام کریں گے۔ بلوچستان جیسے محدود وسائل والے صوبے میں یہ پروجیکٹ بروقت تشخیص کے ذریعے مریضوں کی بقا کی شرح بڑھانے میں انقلابی کردار ادا کرے گا۔ ٹیم کا اگلا ہدف ملٹی کلاسیفیکیشن ہے تاکہ ٹیومر کی مختلف اقسام کی بھی شناخت کی جا سکے۔ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں بلکہ پاکستان کے نوجوان طلباء کی ذہانت، عزم اور امید کی شاندار مثال ہے۔ سانگھڑ میں ایک ایسا منفرد ہوٹل بھی ہے جو ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں بلکہ گھنے اور سایہ دار نیم کے درختوں کے نیچے قائم ہے۔ ہوٹل شہریوں اور مسافروں کے لیے خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مزید بتائیں گے عبدالرحمان خاصخیلی۔ جی، ایک جانب شدید گرمی کا راج ہے تو وہیں پر سانگھڑ کے علاقے منڈ جمڑاؤ میں ایک ایسا ہوٹل بھی ہے جہاں پر نیموں کے درخت پر ایک بہترین اور ٹھنڈا موسم یہاں پر ملتا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں اس ہوٹل پر آتے ہیں اور چائے اور کھانا کھاتے ہیں، جہاں پر گھنے درخت موجود ہیں اور اس گھنے درختوں کی وجہ سے جو گرمی کی شدت ہے وہ کم ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں اس ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک جانب نہری نارا کینال ہے تو دوسری جانب یہاں پر یہ ایک ہوٹل ہے، کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہاں پر مقامی لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان جو کہ فطرت اور قدرت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اگر ان کی نعمتوں کو پائے گا تو ان کی زندگی بھی بہتر گزرتی ہے، لیکن دوسری جانب سانگھڑ کے علاقوں میں درختوں کی کٹائی جاری ہے تو وہیں پر ایک ایسا ہوٹل بھی ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی لوئر دیر کے سرسبز پہاڑ ایک بار پھر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہیں دھواں اٹھتا دکھائی دیتا ہے تو کہیں آگ کے شعلے میلوں دور سے نظر آتے ہیں۔ ہر سال یہی منظر دہرایا جاتا ہے، لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ آخر ان جنگلات کو آگ کون لا رہا ہے اور کیوں؟ دیکھیے انجم اسماعیل کی رپورٹ۔ لوئر دیر کے پہاڑی علاقوں میں واقع قیمتی جنگلات نہ صرف قدرتی حسن کا شاہکار ہیں بلکہ ہزاروں جنگلی جانوروں، پرندوں اور نایاب پودوں کا مسکن بھی ہیں، مگر گرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف مقامات پر آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بعض اوقات شدید گرمی، خشک گھاس اور تیز ہوائیں آگ کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہیں، جبکہ کئی واقعات انسانی غفلت یا دانستہ کارروائی کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں۔ جنگلات میں آگ لگنے کے زیادہ تر واقعات کی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں، قدرتی وجوہات کے ساتھ ساتھ انسانی سرگرمیاں ہیں، جبکہ خشک گھاس اور تیز ہوائیں جنگلات میں آگ کو بہت تیزی سے پھیلاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک معمولی سی چنگاری چند ہی لمحوں میں سینکڑوں ایکڑ جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ آگ لگنے کے بعد اسے بجھانے کے لیے دشوار گزار راستے اور وسائل کی کمی ایک بڑا چیلنج بن جاتے ہیں۔ ریسکیو ڈبل 122 کی ٹیمیں ہنگامی بنیادوں پر جنگلات میں لگنے والے آگ کو بجھانے کے لیے مصروف عمل رہتی ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، تاہم ہم اپنے دستیاب وسائل کے ساتھ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ لوئر دیر کے جنگلات صرف درختوں کا مجموعہ نہیں بلکہ آنے والے نسلوں کی امانت ہے۔ اگر آج ان کی حفاظت نہ کی گئی تو کل یہ سرسبز پہاڑ صرف راکھ اور دھوئیں کی داستان بن کر رہ جائیں گے۔ اسماعیل انجم، آج نیوز، لوئر دیر۔
बूरेवाला में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहरियों की जानिब से धूप से बचाव के लिए सन ग्लासेस और रुमाल और टोपियों की खरीदारी जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद सलीम से। जी बिल्कुल, पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों की तरह बूरेवाला शहर और इसके मुदाफ़ाती इलाके जो है शदीद गर्मी की लपेट में हैं और सूरज की तपश से बचने के लिए शहरियों ने जो है वो हिफाजती इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। और इस सूरज की तपश से बचने के लिए शहरियों ने जो है वो सन ग्लासेस, रुमाल और टोपियों की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख किया। में शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। तो हम गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐनक, सन ग्लासेस और रुमाल और कैप का इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं यहाँ से, ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। इनका कहना है कि कीमतें जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन ये अशद ज़रूरत भी है। और उनका कहना है कि यकीनी तौर पर हम हिफाजती तदाबीर जो है, जिसमें ऐनक लगाने के साथ साथ सर के ऊपर टोपी पहनना और रुमाल लेना, इससे जो है हम सूरज की तपश से बच सकते हैं और हम अपनी सेहत की जो है हिफाजत कर सकते हैं। जी, पन्नू आकिल शदीद गर्मी की लपेट में है। सूरज की तेज तपिश से बचने के लिए शहरी रंग बिरंगी टोपियों और चश्मों की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। मजीद बताएंगे शाहिद मुगल। जी बिल्कुल, पन्नू आकिल में भी शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी से बचने के लिए पन्नू आकिल के शहरी जो है यहाँ पर धूप की तपिश से बचने के लिए जो सूरज अब आग बरसाना शुरू कर दिया है, उससे बचने के लिए शहरी जो है चश्मे और टोपियां खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है चश्मे की दुकान पर शहरी मौजूद है, शहरी से जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। धूप से बचने के लिए वो चश्मा खरीद रहे हैं, टोपी ले रहे हैं और रुमाल साथ में लेके घूम रहे हैं। हम यही चाहते हैं इंतजामिया से तपती हुई धूप के गुजर रहे हैं, तो इनके लिए यहाँ कोई पानी का बंदोबस्त किया जाए। हर चौक पे पानी, ठंडा पानी मुहैया करना चाहिए मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए। शहरी का मजीद यही कहना था। पन्नू आकिल में कई रोज से शदीद गर्मी की लपेट में है। गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई ऐसे हीट स्ट्रोक के लिए कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए हैं, जैसे कि मुख्तलिफ चौराहों पे पहले जो है ठंडे मशरूबात के इंतजाम किए जाते थे। इस दफा जो है पन्नू आकिल में इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसे ठंडे मशरूबात का इंतजाम नहीं किए गए हैं जो कि शहरियों को जो है ठंडा पानी मैसर हो सके। जी, जामशोरो, कोटरी और गिरदोनवा में पीने के पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। टैंकर माफिया महंगे दामों पानी फरोख्त करके फ़ायदा उठा रही है। मजीद बताएंगे दीदार अली मल्लाह। जी बिल्कुल, आज के इस जदीद दौर में जहां दुनिया तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है, वहां सिंध का जो जामशोरो ज़िले जो कुदरती वसाइल थे माला माल होने के बावजूद यहाँ पर गुज़िश्ता कई सालों से जो है पानी की किल्लत जो है संगीन हो गई है। जबकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी बोलाड़ी के वार्ड नंबर 1 गरीबाबाद में, जहाँ पर आप वाटर टैंक की हालत देख सकते हैं, जहाँ जो है सफाई ना होने की वजह से जो गंदगी के ढेर भी लग गए हैं और यहाँ पर जो है पानी की किल्लत भी इंतहाई संगीन हो गई है। लोग जो है देख रहे हैं आप, मेरा कैमरामैन आपको अकब में दिखा सकता है कि लोग जो है पाइप के ज़रिए और जो बाल्टीज़ के ज़रिए जो ये पानी यहाँ से भर रहे हैं, जो गंदा पानी है, पीने के लायक भी नहीं है। मगर यहाँ पर जो वाटर टैंक तो बने हुए हैं, मगर यहाँ पर पानी का जो मुयसर जो इक़दाम है वो नहीं किया जा रहा है। जबकि यहाँ के शहरी और मकीनों ने जो है आला काम से मुतालबा किया है कि ये पानी का जो संगीन मामला है, इस पर जो है संजीदगी से जो नोटिस लेना चाहिए, ताकि आवाम को जो है पीने का साफ़ पानी मुयसर हो सके। जी, हाफिजाबाद में भी शहरियों ने पानी के हुसूल के लिए नहरों का रुख कर लिया है। बड़ी तादाद में लोग नहरों के किनारे लगे नलकों से पानी लेकर जाते हैं। मजीद बता रहे हैं अंजुम सुहेल। जी बिल्कुल, अगर बात कीजिए हाफिजाबाद के मौसम की, तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद का मौसम भी इन दिनों शदीद गर्म है और शहरी जो है इस शदीद गर्म में ठंडा मीठा पानी हासिल करने के लिए नहरों के किनारे लगे नलकों का रुख करते हैं। मुखैर ज़रात की जानिब से ये नलके लगाए गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे आती है, रोजमर्रा की तरह पानी लेके जा रहे हैं। अगरचे शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए गए हैं, लेकिन वो लाखों की आबादी के लिए निकाफी है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। नहरों के किनारे पे नलके लगे हुए हैं और माशाल्लाह ठंडा और अच्छा पानी है। जितने भी शहर के लोग हैं यहाँ पे आते हैं, घरों के लिए पानी लेके जाते हैं। सर ये बहुत अच्छा पानी है, लोगों की सेहत के लिए भी लोग ये बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। सुबह फर्स्ट टाइम मैं कम से कम 5-6 साल से ये पानी सप्लाई करता हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि शहर की निस्बत नहर किनारे लगे इन नलकों का पानी ठंडा मीठा मजेदार भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है। लोग यहाँ से आते हैं, पानी लेके जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से पानी भर के शहरों में लोगों के घरों तक भी सप्लाई करते हैं। शहदाद कोट में वाटर सप्लाई स्कीम्स के जरिए शहरियों को फराहम किया जाने वाला पानी मुजरे सेहत बन गया है। एहसान जुनेजो मजीद बताएंगे।
जिला कंबर शहदादकोट के सबसे बड़े 4 लाख आबादी के शहर शहदादकोट में वाटर सप्लाई का जो पानी है उसकी फराहमी सवालिया निशान बनी हुई है। इस वक्त तक पानी की फराहमी मुनासिब तरीके से शहरियों को नहीं हो रही, जबकि यहाँ पर हमने दिखाया कि अक्सर वो बेशतर जो वाटर सप्लाई हैं उनके मोटर्स ख़राब हैं और पानी तालाबों में जमा नहीं किया जा रहा, और जहाँ पर जमा हो चुका है वहाँ पर भी गंदगी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर दीवारें टूटी हुई हैं। नकासी आपका निज़ाम है वो इस तालाबों में किया गया है, जिससे मुज़र सेहत पानी बन चुका है, और जो शहरियों को फराहम होगा तो उससे क्या सेहत के मसाइल पैदा होंगे। शहरियों से बात करते हैं। ये जो पानी है इसमें गंदा पानी छोड़ किया जा रहा है, शहर की गंदा पानी वो लोगों को दिया जा रहा है। तो हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये म्यूनसिपल इंतज़ामिया की ये जो इंतहाई नाअहल कारकर्दगी की वजह से आज हम इतना गंदा पानी पी रहे हैं जिससे वबाई बीमारियाँ फैल गई हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वाटर सप्लाई स्कीमों के तालाबों की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए और जो पानी है वो इसको बेहतर तरीके से शहरियों को फराहम किया जाए। शेखपुर शरीफ में सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी के मौसम में बिजली की बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी है। मजीद बताएंगे तहमा से पली नकवी। जी, शदीद गर्मी के मौसम में शेखपुर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। अपील है साड़ी जी कि साढ़े शहर शेखपुर शरीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ टाइम ਦਾ ਮਸਲਾ नहीं ਹੈਗਾ। घंटा आती है 2 घंटे चली जाती है। बत्ती बार बार जाती है शेखपुर शरीफ में, 1 घंटा आती है 3 घंटे जाती है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। एक तरफ शदीद गर्मी पड़ रही है, दूसरी तरफ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शेखपुर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में शदीद गर्मी के मौसम में फौरी तौर पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद किया जाए। जी, साहिवाल में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने जूस पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद बताएंगे मियां वसीम रियाज। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी जो है वो आज गर्मी का जो सूरज का पारा है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग जो है वो मुख्तलिफ जो है वो बहाने से जो है वो इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जूसेस पिए जा रहे हैं और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह लोगों ने जो है वो गन्ने के स्टालों का भी रुख किया है, जहाँ पे वो गन्ने का जूस पीकर जो है गर्मी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इसके बारे में इनका क्या कहना है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो हम इधर आए हैं गन्ने का जूस पीने। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैदे को ठंडा करती है और वैसे भी अंदर जो पीते हैं बहुत सुकून मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका भी यही कहना है कि ना सिर्फ इससे गर्मी की शिद्दत कम होती है बल्कि ये मैदे और जिगर को भी जो है वो ठंडक का एहसास दिलाता है। जी, मेलसी में शदीद गर्मी और हीट वेव ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत भी इस सिलसिले में आगाही फराहम कर रही है ताकि हीट वेव के मुज़र असरात से बचा जा सके। मेलसी से सादिक मिर्ज़ा की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी और हीट वेव की लहर जारी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक बुज़ुर्ग अफराद, बच्चे और पहले से बीमार अफराद इस मौसम में सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। जैसा कि आप सबके सामने है कि बहुत शदीद गर्मी के मौसम में हर मरीज़ को बल्कि हर इंसान को एहतियात की सख्त ज़रूरत है। दिल, गुर्दा और शुगर के मरीज़ों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना चाहिए और पानी का इस्तेमाल अपने मौलिज के हिदायत के मुताबिक करना चाहिए। हुकूमत और मुख्तलिफ समाजी इदारे हीट वेव से बचाव के हवाले से आगाही मुहिम चलाना खुशाइंद है ताकि शहरियों को एहतियाती तदबीर से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जा सकें और मुमकिन ख़तरात से महफूज रह सकें। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान का एक ऐसा इक़दाम है कि वो भरपूर आगाही भी दे रही है आवाम को कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें। हीट वेव के दौरान एहतियात, बर वक्त तिब्बी मशवरा और आगाही ही इस ख़तरनाक मौसमी सूरत हाल से महफूज रहने का मुयस्सर ज़रिया है। हीट वेव से बचने का वाहिद हल गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर्स की बताए हुए हदायत पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ सादिक अली, आज न्यूज़, मेलसी। फिरोजवाला में सूरज का पारा हाई, मशरूबात के स्टॉल्स पर रश लग गया। शहरी इमली, आलू बुखारा, लीमू पानी और दीगर रवायती ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद बताएंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे राना उवैस।
जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ फिरोज आला में। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी जो है वो ठंडे मशरूबात के स्टॉल की तरफ जो है वो रुख करते हैं, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक स्टॉल पर जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो ठंडे मशरूबात पी रही हैं और गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूँ दर्जा हरारत की, तो इस वक्त फिरोज आला जो है वो 48 से 49 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि शहरी जो है दूर दराज से आकर यहाँ पर ठंडे मशरूबात पीते हैं और गर्मी की शिद्दत कम करते हैं। मजीद इन्हीं से जानते क्या कहेंगे इस बारे में। सर मैं काबुक से आता हूँ, पहली मरतबा पिया था इन्हों का जूस, आम इमली आलू बहारे का, बहुत मजा आया था और ठंडक पहुंचती है। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात जो है वो पीते हैं। और यहीं पे बताता चलूँ कि शहरी दूर दराज से यहाँ पर जो आकर ठंडे मशरूबात पीते हैं ताकि गर्मी की शिद्दत जो है वो कम। शिकारपुर में बनने वाला अचार पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। 40 से ज़ायद इकसाम का अचार बनाकर मार्केट में फरोख्त किया जाता है। मजीद बताएंगे अमजद अराई। बिल्कुल, शिकारपुर के अचार की बात न की जाए तो मज़ा नहीं आता। शिकारपुर का अचार न सिर्फ शिकारपुर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। यहाँ से लोग दूर दूर से ख़रीदने के लिए आते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म का अचार बनाया जाता है और बड़े टेस्टी अचार होते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितने किस्म का अचार होता है और कैसे ये बनाया जाता है। मसाले जात हमारे अपने होते हैं, कुछ बाज़ारी भी होते हैं, कुछ अपने भी होते हैं सीक्रेट, जिसकी वजह से जायका बनता है। जो मशहूर है ना वो इस वजह से मशहूर है क्योंकि यहाँ का पानी साफ़ है। पानी की वजह से है हमारी अचार शिकारपुर की मशहूर है। तकरीबन हर आइटम का अचार बन रहा है। आम का मुरब्बा है, अभी आम की जैसे सीज़न चल रही है, आम की अचार है, आम का मुरब्बा है, आम की चटनियाँ हैं, ये सारे आइटम अवेलेबल हैं। जी, आपने दुकानदार की बात सुनी। इनका कहना है कि आम का अचार, मुरब्बे का अचार, मुर्गी का अचार, हर अचार यहाँ पर दस्तयाब होता है। न सिर्फ शिकारपुर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये अचार जो है वो भेजा जाता है। अगर खाने के दस्तरखान पे शिकारपुर का अचार नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। जी, सजावल के बाजार सिंधड़ी आम की खुशबू से महक उठे हैं। सुनहरी रंगत और मुनफरिद जायके के बायस सिंधड़ी आम खरीदारों की पहली तरजीह है। कीमतों में कमी के बाद खरीदारी में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। बाबूजान सजावली की रिपोर्ट देखते हैं। के बाज़ारों में इन दिनों एक ही चर्चा है, सिंधड़ी आम का चर्चा। जहां नज़र दौड़ाएं सुनहरे आमों से सजे ठेले और दुकानें दिखाई देती हैं। खुशबू ऐसी कि राहगीर भी बेअख्तियार रुक जाएं और जायका ऐसा कि हर बार चखने वाला दोबारा खरीदने पर मजबूर हो जाए। मीठा भी है, खाने में लजीदार भी है, हर कोई पसंद करता है सिंधड़ी आम को। सभी आमों से ऊपर इसका नाम है सिंधड़ी आम। फल फरोशों का कहना है कि सिंधड़ी आम की मांग तवक्कुआ से कहीं ज़्यादा है। सुबह से शाम तक खरीदारों का तांता बंधा रहता है और ताज़ा आमों के आमद का सिलसिला भी जारी है। कि जो शहरी है सबसे ज़्यादा सिंधड़ी जो आम है वो खरीद करते हैं क्योंकि सिंधड़ी आम जो है उसका जायका सबसे अलग है। सिंध की शनाख्त समझे जाने वाले सिंधड़ी आम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आमों की दुनिया में इसका मकाम मुनफरद है। सुनहरी रंगत, रसीला गोदा और कुदरती मिठास से हर उम्र के अफराद के लिए पसंदीदा बना रही है। कैमरा टीम के साथ बाबूजान सजावली, आज न्यूज़ सजावल। कोहाट के सयाहती मकाम कचई मिरगजई मेले में मुल्क भर से सयाह लुत्फानंदोज होने आते हैं। दुश्वार गुजार रास्ते की वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद बताएंगे सैयद अलीम हैदर। जी बिल्कुल, ये कोहाट का तफरीही मकाम है और ये ज़ियारत है मीर हबीब औलिया। यहाँ पर कोहाट और जुनूबी अजलास से सयाह आते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ का जो रास्ता है वो इंतहाई दुश्वार गुजार है। कोहाट से दो वज़रा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक MNA है शहरियार खान आफरीदी। यहाँ की आवाम का कहना है, सयाहों का ये कहना है कि ये तीनों मुंतखब अवामी नुमाइंदे जो है वो कम अज़ कम इस रास्ते का बंदोबस्त करें ताकि मजीद सयाह यहाँ पर आए और ये इलाका मजीद तरक्की करे। यहाँ पर मेरे साथ मकामी बाशिंदे मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे इस हवाले से वो क्या कहेंगे। यहाँ की लाखों के जब मौसम गर्मा की मौसम आती है यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। टूरिज्म यहाँ से लेकर कराची तक, वहाँ से सारे टूरिज्म आते हैं। अगर रोड का अहवाल देखे तो यहाँ पर इतना रोड खराब हो चुका है कि मतलब सारे गड्ढे पड़े हुए हैं इसमें। मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हूँ, लेकिन नाखुश हूँ अपने नुमाइंदों से क्योंकि दो सूबाई वज़रा हैं, एक मतलब फेडरल गवर्नमेंट में जो बैठा हुआ है इस टाइम शहरियार आफरीदी साहब है, इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे इलाके के लिए सर। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के मकामी बाशिंदे की बात सुनी। उनका कहना है कि मैं तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ लेकिन अपने नुमाइंदों से इंतहाई मायूस हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हमारा एक छोटा सा जो रास्ते का मसला है वो तक अभी हल नहीं किया। जी,
हैदराबाद में 2 रोज़ा गमनाक हुसैनी अदबी मेले का इफ्तिताह हो गया। सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने मेले का इफ्तिताह किया। सिंध म्यूज़ियम में मुनक़िदा मेले में सूफ़ी फ़नकारों ने नामवर सूफ़ी शायर सैयद ग़ुलाम रसूल शाह गमनाक हुसैनी को सूफ़ी कलामों के ज़रिए ख़िराज अक़ीदत पेश किया। सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि गमनाक हुसैनी ने अपने कलम से जिस मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम दिया था वो आज नौजवानों में मुंतकिल हो रहा है। गमनाक हुसैनी साहब थे, उन्होंने बड़े शागिर्द पैदा किए इस खित्ते से और उन्होंने हमेशा प्यार का, अमन का दर्स दिया। इस टाइप के प्रोग्राम नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेले में सेशंस के दौरान माहिरीन ने अदबी, सहाफ़ती, माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, जबकि महफिल मुशायरा में नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। जहाँ पे इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रश होता है वो नौजवानों का होता है। 15 से 16 से लेकर 25 से 30 साल वाले नौजवान भी शरीक होते हैं और उसमें अच्छा खासा तादाद हो तो वो ख़वातीन का होता है। और हर दौर में अदब ने अपना एक ख़ास किरदार अदा किया है। लिटरेचर का कभी भी रोल ख़त्म नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि दुनिया तब्दील हो गई है और हाथ में दुनिया आ गई है, लेकिन मैं कहता हूँ किताब जो है वो हमेशा रहनुमाई करता है। अदबी मेले में सूफ़ी फ़नकारों के साथ मारूफ फ़नकारों रजब फ़कीर, बरकत फ़कीर और रेशमा परवीन की परफॉर्मेंस ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। कैमरामैन अदनान ज़ई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। आज के लिए इतना ही। आज का पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।